یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب خبروں کی تفصیل۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت پر سخت ناراضگی ظاہر کی اور بی جے پی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا کہ ہند چین سرحد پر کیسے ہمارے فوجی جوان مارے گئے اور کس طرح ان چینیوں کی ہمت ہوئی کہ انہوں نے دراندازی کرتے ہوئے ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا۔ اس کا جواب نریندر مودی دے۔ اسد الدین اویسی نے اس ضمن میں مزید تفصیلات بھی بتائی۔ ہماری ٹیریٹری سے ان کو ہٹائیں۔ جو ٹیریٹری انہوں نے بھارت کی ٹیریٹری تھی اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ورنہ ان تمام سپاہیوں کی جان جو گئی ہے وہ رائے گاہ چلے جائے گی۔ اگر ان کی جان کو جو چلی گئی ہے رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہیے، ان کی جان کی اگر اہمیت ہے تو ہم وزیر اعظم پرائم منسٹر سے مودی سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ چین کو ہٹائیے ہماری زمین سے، آپ اکاؤنٹیبلٹی فکس کریے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو بتانا چاہیے دیش کو، کیونکہ دیش میں آج ہمارے ان 20 سپاہیوں کی موت کے بعد بہت غم اور غصہ ہے۔ دیش یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ چین نے آخر کتنی ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ بتاتی کیوں نہیں سرکار یہ؟ بھائی ڈی اسکیلیشن، ڈی انگیجمنٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ کتنی زمین پر چین نے قبضہ کیا؟ چین نے تو اپنے علاقے میں آرٹلری بھی لگا دیے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بنکرز بنا رہا ہے جہاں پر قبضہ کیا ہے اس نے۔ تو پرائم منسٹر کو یہ بتانا چاہیے کہ چین نے ہماری کتنی زمین پر اندر گھس کر قبضہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ چین اتنی بڑی تعداد میں اپنی فوج کے ساتھ بھارت کے علاقوں میں گھسا ہے۔ قریب 40 سال کے بعد بغیر گولی چلے ہمارے سپاہیوں کو مار مار کر ان کی جان لے لی گئی ہے۔ تو پردھان منتری کو بتانا پڑے گا۔ کیجوالٹی ادھر بھی ہوئی ہے سر۔ تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک نے ہند چین سرحد پر شہید ہوئے 20 نوجوان اور خاص کر تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے شہید کرنل سنتوش بابو کی وطن کے لیے دی گئی قربانی کو یاد کرتے ہوئے سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے تلنگانہ کے مسلم نوجوانوں اور تحریک مسلم شعبان کے پارٹی کارکنان کے ہمراہ چار مینار کے دامن میں ایک مارچ نکالا اور کہا کہ ہمارے جوانوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور کہا کہ ہم اپنے جوانوں کو سلام کرتے ہیں۔ جی صاحب، چائنا نے جو اٹیک کیا ہے ہندوستان کے فوجیوں پر اور پھر ہماری زمین میں گھس گیا ہے اور کافی زمین چائنا کے قبضے میں، جو اطلاعات مل رہی ہے، پہلے تو ہندوستان کی حکومت 56 انچ کے سینے والی حکومت کو چاہیے کہ ملک کو آگاہ کریں کہ ہمارے کتنے جوان زخمی ہیں اس وقت۔ جو اطلاعات آج آئی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا نے جو لکھا ہے، قریب 80 کے قریب ہمارے جوان اس وقت زخمی ہیں اور 20 سمجھیے کہ ڈیڈ باڈیز ہم نے وہاں سے اٹھائی ہے۔ یہ کہ اور چائنا کے کتنے لوگوں اس اٹیک میں، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا کہ مارتے مارتے مرے ہیں، تو ہم اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ ہمارے جوان مارتے مارتے مرے ہیں، لیکن ہماری انڈین آرمی اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ آج تک نہیں آیا کہ چائنا کے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یا چائنا کے کتنے جوان مرے ہیں۔ گودی میڈیا کچھ بول رہا ہے، اس پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے۔ آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے، اور پھر یہ حکومت صرف ہندو اور مسلمان کرنے میں ماہر نظر آتی ہے۔ ملک کی سرحدیں اس حکومت کے ہاتھوں میں محفوظ نظر نہیں آتی۔ ملک کے ہمارے جتنے پڑوس ہیں وہ سارے پڑوس ہم کو ٹی ڈی پی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے آندھرا پردیش کے ڈی جی پی گوتم سوانگ کو خط لکھا، جس میں پسماندہ طبقات پر حملہ کرنے کا ٹی ڈی پی رہنماؤں پر جھوٹے مقدمات درج کرنے کا الزام ہے۔ خط میں نائیڈو نے ارچن نائیڈو کی گرفتاری اور دوسرے رہنما اینا پتردو کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات میں غلطی ہونے کو کہا ہے۔ انہوں نے پولیس پر حکومت کے ساتھ خطوط پر عمل کرنے کا الزام بھی لگایا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ حکومت بی سی رہنماؤں پر حملے کر رہی۔
रियासत में कोरोना फैलने के बावजूद आंध्र प्रदेश की हुकूमत फलाही स्कीमों के निफाज में पीछे नहीं हट रही। मुसलसल दूसरे साल फलाही स्कीमों पर अमल दरामद के लिए इक़दाम किए जा रहे। इसी तरह YSR नेतना नेस्टम स्कीम पर इक़दाम किए जा रहे, जिसका मकसद जुलाई को माली इमदाद फराहम करना है। CM जगन इस मंसूबे को रवा माह की 20 तारीख को शुरू करेंगे। हुकूमत ने अब गांव और वार्ड रजाकारों के जरिए इस स्कीम के लिए अहले मुस्तहिकीन की फहरिस्त जमा कर ली और इस स्कीम के लिए फंड्स भी जारी किए गए हैं। AB की असल अपोजिशन तेलुगु देशम की कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन कौंसल लोकेश के दौरे के इंतजाम करने वाले 2 लीडरों के खिलाफ आनंदपुर जिले की ताड़ी पथरी पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज कर लिया। इस मामले के अंदराज की खबर ताखिर से सामने आई। साबिक़ रुकन असम्बली JC प्रभाकर रेड्डी, उनके बेटे अस्मित रेड्डी की गिरफ्तारी के पेश नजर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट JC दिवाकर रेड्डी, JC पवन कुमार से यगांगियत के इजहार के लिए लोकेश ने पीर को जिले आनंदपुर के ताड़ी पत्री का दौरा किया था। तवील इंतजार के बाद इंडियन रेलवेज ने मुल्क की 5 रियासतों के लिए 960 कोविड केयर कोचेस जारी किए हैं। तेलंगाना को ऐसे 60 कोचेस मिले हैं। रियासती हुकूमत को मरकजी वजारत सेहत की जानिब से 6 मई को जारी करदा तरीक़ेकार के मुताबिक डॉक्टर्स और नीम तिब्बी एहलकारों को फराहम करना होगा। हैदराबाद में मजीद 2 मुलाजमीन पुलिस कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। दिन ब दिन मुलाजमीन पुलिस के इस इन्फेक्शन से मुतासर होने की तादाद में इजाफा देखा जा रहा। ताज़ा तौर पर संजीवा रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की मुस्बित रिपोर्ट बरामद हुई है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल संतोष बाबू, जो लद्दाख के गलवान वादी में चीनी फौज के साथ हुए तसादुम के दौरान शहीद हो गए थे, उनकी आखिरी रसूमात उनके आबाई जिले सूर्यापेट में अंजाम दे दी गई। फौजी हुकाम और रियासती ओहदेदारों ने उनकी आखिरी रसूमात के लिए तमाम तर इंतजामात किए। इस मौके पर गैर मामूली जज्बात मनासिर देखे गए। तेलंगाना में स्पोर्ट्स की सहूलतों को खेलो इंडिया स्कीम के तहत जल्द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जाएगा। मरकजी वजारत स्पोर्ट्स इस स्कीम के तहत उन तमाम सेंटर्स बराए एक्सीलेंस को एक जगह जमा करने की तैयारी कर रही। रियासत और मरकजी ज़र इंतज़ाम इलाकों में एक सेंटर की निशानदही की जाएगी, जिसका मकसद मुल्क भर में स्पोर्ट्स की सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। पेद्दापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हलाक हो गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब जिले के सुल्तानाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसकी शिनाख्त तिरुपति के तौर पर की गई है, वो कार की टक्कर लॉरी से हो गई। ASI ड्यूटी के बाद सुल्तानाबाद से घर वापस हो रहे थे। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में नताइज जारी करने के बाद कहा कि इंटर साल अव्वल 60.1% और साल दुवम में 68.86% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की। सेकेंड ईयर में आसिफाबाद जिले टॉप रहा, यहाँ 76% तलबा ने कामयाबी हासिल की। फर्स्ट ईयर में मेडचल जिला 75% कामयाबी के साथ सर फहरिस्त रहा। మంచి కెరీర్ ఎన్నుకొని మేము మంచి భవిష్యత్తు ఉండేటట్టు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి మా అధికారులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. మంచి ఎక్సైజ్ చేస్తున్నారు, టీం వర్క్ చేస్తున్నారు. మీకు అందరికీ మరొకసారి అభినందనలు. మీతో పాటు చిత్ర గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. I now request the Honorable Minister, Madam, to kindly release the CDs and the password.
these CDs are being sent through mail to all our press friends from imprint and electronic media. तेलंगाना के जिले विकाराबाद में नौजवान लड़की और लड़की की नाशें दरख्त से लटकती हुई पाई गईं। यह वाकया जिले के पोलापल्ली गांव में पेश आया, जहां के खुली अराजी पर वाक़े दरख्त की मदद से उन दोनों ने एक साथ फांसी लेकर ये इंतहाई इक़दाम किया। समझा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनकी शनाख्त 20 साला कार्तिकिया और 19 साला मीना के तौर पर की गई है। मीना की शादी हाल ही में शमशाबाद मंडल के मंचीराव पेट के रहने वाले लड़के से हुई थी। ज़रई अराजियत को जाने के दौरान किसानों ने इन दोनों की नाशों को देखकर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से नाशों को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंध्र प्रदेश में मंदिर के दर्शन के बाद वापसी के दौरान पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 9 अफराद मौके पर ही हलाक और 30 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले कृष्णा के जगियापेट मंडल के विदात्री के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी और ट्रैक्टर में खौफनाक तसादुम हो गया। हादसा इतना शदीद था कि 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए थे। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों का ताल्लुक तेलंगाना के जिले खम्मम के एरोपालेम गोपावरम से बताया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के खाजिन व सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासर हो गए और वो शहर के एक कॉरपोरेट अस्पताल में ज़र इलाज हैं। नारायण रेड्डी ने खुद वायरस से मुतासर होने का अपने तौर पर इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मुस्तहक़ अफराद में अशिया ज़रूरिया की तकसीम के कामों में हिस्सा लिया था, जबकि उन्होंने गुज़िश्ता कई महीनों से किसी बैरूनी ममालिक या रियासत का भी दौरा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि रियासत में वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा, लेकिन हुकूमत इसको मुस्तरद कर रही। तवज्जो हटाकर एक ताजिर को लूटने वाली 4 रुकनी टोली को पुलिस साइबराबाद ने गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि 25 टन प्लास्टिक दाना को लूटने वाले 4 अफराद 35 साला कुमार प्रमोद साकिन बंडलागुड़ा जागिर मुतवत्तिन बिहार, 41 साला संदीप कुमार बिड साकिन मलारदिफपल्ली मुतवत्तिन राजस्थान, 34 साला ठाकुर धीरज सिंह साकिन मासाब टैंक को गिरफ्तार कर लिया। 14 जून को इस टोली ने शिकायत गुजार शख्स जो धर्मापुरी तमिलनाडु इलाके का साकिन है, उसकी तवज्जो हटाकर उसके कब्जे से बड़ी मिक़दार में तकरीबन 25 टन प्लास्टिक दाने को लूट लिया था। उसकी मालियत 23,20,175 रुपए बताई गई है। मलारदिफपल्ली पुलिस ने शिकायत पर फौरी इक़दाम करते हुए इस टोली को बेनकाब कर दिया और मसरूक़ा सामान के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। అందరికి తెలుసు ఈ కాటన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా పెద్దది. సుమారు ఇక్కడ ఒక 600 ఫ్యాక్టరీలు చిన్న పెద్ద అన్నీ ఉంటాయి. ఈ రకరకాల ఫీడ్స్ వస్తుంటాయి, రకరకాల ఆర్టికల్స్ వస్తుంటాయి. ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యి పోతుంటుంది ఇక్కడ నుంచి. అయితే అందులో భాగంగా ఒకటి బస్ డియో అని చెప్పి ఒక ప్లాస్టిక్ సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఇక్కడ కాటన్లో. దానికి ముడి సరుకు ప్లాస్టిక్ దానా వేరే వేరే వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ప్లాస్టిక్ ఐటమ్ తయారు చేసిన తర్వాత సేల్ చేసుకుంటారు. 14వ తేదీన సెరింగేట్ అని చెప్పి ధరంపురి తమిళనాడు నుండి 25 లక్షల రూపాయలు భర్తీ చేసే ప్లాస్టిక్ దానా తీసుకొని ఒక సుమారు 1000 బస్తాల ప్లాస్టిక్ దానా తీసుకొని లోడ్ తీసుకొని ఇక్కడ అన్లోడ్ చేయడానికి బస్ డియో కంపెనీకి అన్లోడ్ చేయాలి. అది సుమారు మార్నింగ్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ అతను బస్ డియో అనేకుండా చూస్తున్నాడు ఆ కంపెనీ కోసం అని. ఇక్కడ ఉన్న మేనేజర్ ఉన్న కుమార్ ప్రియవర్ది అని చెప్పి అతను మేనేజరు. అతను తెలుసు అతను ఎవరు వచ్చినా అతను కమ్యూనికేషన్ తీసుకొని వాళ్ళు చేరవేస్తాడు. ఇతను వచ్చి అడ్రస్ కోసం వెతుకుతుంటే ఇతను ఒక దుర్బుద్ధి పుట్టింది. ఈ ప్లాస్టిక్ దానా ఇతను డ్రైవర్ తమిళనాడు నుంచి వచ్చాడు, ఎట్లాగా దీన్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలి, దీన్ని చీట్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకొని ఇతను ఏం చేసిండే ఇతని ఫ్రెండ్ అయిన సందీప్ ఉన్నాడు. అతను కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ సంబంధించిన కార్ఖానా ఒకటి ఉంది. అతనికి చేరవేద్దామని ప్లాన్ చేసుకొని ఇందులో ఒక బ్రోకర్ అయిన వీడు ఠాకూర్ ధీరజ్ అని ఉంటాడు, ధీరజ్ రాజ్ అని చెప్పి.
नाक़िस अशिया और ममनुआ पान मसाला व गुटखा फरोख्त करने वाले एक किराना दुकान मालिक के खिलाफ पीडी एक्ट नाफिज कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस राजाकुंडा महेश भागवत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए। बताया जाता है कि सैनिकपुरी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला 38 साला वीरेंद्र, जो पेशे से किराना दुकान चलाता है, ये शख्स नाक़िस गुटखा और पान मसाला को ज़ायद कीमतों में फरोख्त कर रहा था। महेश सिंह नामी शख्स, जो आनंद बाग मलकाजगिरी का साकिन है, उसने कम कीमत में खरीदारी करते हुए ज़ायद कीमतों में फरोख्त कर रहा था। साल 2019 में 2 मरतबा उसके खिलाफ कुशाईगुड़ा पुलिस ने कार्रवाई और जेल मुंतकिल कर दिया था, लेकिन उसने ये कारोबार नहीं छोड़ा और एक ही तरह के जुर्म में बार बार मुलविस पाया गया। कमिश्नर पुलिस ने इसके खिलाफ पीडी एक्ट नाफिज कर दिया। प्याज का सरका करने वाला एक बदनाम जमाना सारिक को पुलिस उप्पल ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1.5 लाख रुपए मालियाती प्याज के 91 थैले जब्त कर लिए। पुलिस ने मसरूका प्याज को फरोख्त करने के दौरान इस बदनाम जमाना सारिक 34 साला अभिषेक दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया, जो पुराने शहर के इलाके गौलीपुरा से ताल्लुक़ रखता है। दीक्षित गौलीपुरा मार्केट में हम्माली का काम करता है। उसने आसान अंदाज में पैसे कमाने के लिए मंसूबा तैयार किया और उप्पल की मार्केट में किराए के ऑटो के एक लेबर को साथ लेकर पहुंचा और गौलीपुरा मार्केट को प्याज की मुंतकली का बहाना बनाकर प्याज का सरका करने लगा। उप्पल पुलिस ने 3 मुख्तलिफ शिकायतों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें 2 शिकायत गुजारों ने फीकस 40 थैले सरका होने की और एक ताजिर ने 11 थैले सरका होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मसरूका सामान को जब्त कर लिया। జూన్ ఉదయము మన ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ డిఎస్ఐ తర్వాత వాళ్ళ టీం కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ ఇద్దరు ఒకరు నోటోరియస్ ప్రాపర్టీ అఫెండర్ అభిషేక్ దీక్షిత్ అని అరెస్ట్ చేశారు ఈ గౌలీపురా మార్కెట్ ఓల్డ్ సిటీ ఏరియాలో. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి 91 బ్యాగ్స్ ఆఫ్ అనియన్ దొరికింది. టోటల్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇస్ 1,50,000 రూపీస్. ఈ అభిషేక్ దీక్షిత్ అనే వ్యక్తి ఈజ్ 34 years old. అమారి లేబర్ పని చేస్తారు. అండ్ హీ వాజ్ బోర్న్ అండ్ బాటప్ ఇన్ గౌలీపురా మార్కెట్ హైదరాబాద్లోనే. చిన్న వయసులోనే స్టడీస్ అని వదిలేసి ఇలా లేబర్ పని చేస్తున్నారు. అప్పుడు థాట్ దట్ ఇట్లా ఈజీగా వీ కెన్ ఎర్న్ మనీ. సో హీ థాట్ ఆఫ్ కమిటింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ because to substitute his कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने रहजनों की टोली को गिरफ्तार करते हुए बेगमपेट इलाके में पेश आए रहजनी की वारदात का मुअम्मा हल कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से मसरूका माल और गाड़ी बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक 14 जून को खैरताबाद के साकिन वी राजेश सिकंदराबाद जुबली बस स्टेशन पर उतरकर परेड ग्राउंड की समत पैदल जा रहा था कि नामालूम अफराद ने उसे जदोकोब किया और बादजा उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। टास्क फोर्स ने मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग का तज्जिया किया, जिसमें रहजनों की शिनाख्त हुई। बताया जाता है कि इस रहजनी में 20 साला मोहम्मद नुसरत पाशा और उसके साथ ही 23 साला सैयद समीर पाशा ने हिस्सा लिया। पुलिस ने बताया कि नुसरत पाशा एक आदि सारिक है और साबिक में उसे बेगमपेट और मारेटपल्ली पुलिस ने सरका और रहजनी के मामलों में मुलविस होने पर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। शहर की भरतनगर मार्केट को इस वक्त बंद कर दिया गया जब कोरोना वायरस से एक तरकारी फरोश की मौत हो गई। वो 2 जून को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में सेहत में बेहतरी के बाद घर भेज दिया गया था और वो आइसोलेशन में था। आइसोलेशन के आखिरी दिन उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई और उसकी मौत वाक़ई हो गई।
لاک ڈاؤن کے بعد موجودہ حالات میں سرکاری ملازمین بالخصوص طبی عملہ اور ایمبولینس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور اس مشکل دور میں عملے کی تعظیم کرنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے. تاہم چند افراد اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی کاروبار کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس عوامی ضرورت کی آڑ میں شراب کا کاروبار کیا جا رہا اور اس کے لیے ایمبولینس گاڑیوں کا استعمال کیا جا رہا. پولیس نے تلاشی کے دوران سوریا پیٹ میں ایک ایمبولینس کو روک لیا اور تلاشی کے دوران مردوں کو منتقل کرنے کے باکسز میں سے زندوں کے لیے آسائش کا سامان منتقل کیا جا رہا. بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے ایک خفیہ اطلاع پر ایمبولینس گاڑی کو روک لیا اور اس کی تلاشی لی. تاہم پولیس کو کافی دیر تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی چونکہ ایمبولینس خالی تھی. جب پولیس نے ایمبولینس میں موجود نعشوں کو منتقل کرنے والے باکسز کی جانچ کی تو اس باکسز سے بڑی تعداد میں پولیس کو شراب کی بوتلیں دستیاب ہوئیں. پولیس نے شراب کی ان بوتلوں کو ضبط کر لیا جو تلنگانہ سے ریاست آندھرا پردیش منتقل کی جا رہی تھی. ناظرین فی الحال بس اتنا ہی. اسی کے ساتھ 1 ٹی وی نیوز کا اردو بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.